Shivani and I are former journalists. We moved out at a very good time when journalism, at least I would say that, I would take the luxury of saying that, when journalism was still journalistic, when we could still bring news to you, and when we could, I can say that for myself at least, that the network trained us to only deliver the news. And it was a pleasure जब हम काम करते थे on the field and off the field. And a lot of all my experience, I used to anchor since I used to sing since I was 8. And I used to host book shows and book launches and uh, quiz for mastermind quiz and all. I've done the nationals and their zonals, but that is because, like I started off saying, मुझे बोलना बहुत पसंद है. So, music and everything to do with words and voices. I now make my own music. I write music. I write content for other companies. I blog for them. जहाँ उनको quirky blogs चाहिए होते हैं, they reach out to me. I'm a full-time mother because that's the one job that does not work part-time. Shivani would know that, and I'm sure all of you who are parents would know that. And I'm a full-time practicing Buddhist. So that is where a lot of my time goes, and I happily devoted to that. उसके आगे गाने लिखना अपने लिए, दूसरों के लिए, गाने बनाना अपने लिए, दूसरों के लिए, podcasting and acting, and going back to everything where there are no regrets. All of you must do that. Thank you, Rajesh ji. So sweet. आप तो तो मेरे प्रश्न इतनी बार कर चुके हैं. तो शिवानी जी, मेरे ख्याल से बिफोर स्टार्टिंग विद योर कंसर्ट आई रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स सो दैट मे बी you can Yes. tell about your book also or Okay, your okay. journey. Wonderful, wonderful. I try not to leave an opportunity to talk about the book. So this book is about my daughter. This is Shreya, and Shreya has Down syndrome. That's my son, Aviraj, and that's my youngest daughter, Noor. So it's a story about how children, this is a fictional character called Sarah. And Ishita, I think I don't know if you know about, you would know because I believe we have a common friend called Mugdha. Yes. Yes. So now, not that different is her initiative with Bookosmia, and we've come out with this book this year. Last year was on autism. This year it's on Down syndrome. And I haven't authored the book. It's been written by a wonderful author called Archana Mohan, but I have mentored her and the book because ये बड़ा sensitive topic है disability को लेकर. You can't get it wrong. You can't use insensitive terminology. तो ये basically कहानी बच्चों के लिए लिखी गई है कि how do they understand and accept and embrace diversity and uniqueness. जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में भी अपनी अपनी qualities हैं, कुछ flaws हैं. How do we accept all those all the uniqueness and the things that we don't like about each other as well and about ourselves? How do you accept that? तो ये किताब उन बच्चों के लिए है because बच्चे जो होते हैं वो बड़े unbiased होते हैं, pure होते हैं. तो अगर उनको बचपन से ही सिखाया जाए how to accept other children who are slightly different but not any less, then when they grow up to make the society that we live in, they are more likely to accept our children who are also growing up and will become adults in the future. तो छोटी सी कोशिश है इस बुक के जरिए to spread the message of inclusion. क्योंकि जो एक चीज है which I'll just won't take too much time, the only one thing that I'd like to say is ability is very temporary. Any one of us can lose the ability to walk, talk, hear, understand anything at any given point of time. But हम उसी ability को इतना for granted लेते हैं. And that is what I want to tell people, that don't think it can't happen to you. You can't have a child with disability. Your children can have children with disability. You can become disabled tomorrow morning. So accept our children. और ये हम मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं because I know we are a long way to go where we have a completely inclusive society. So छोटी सी कोशिश है through this book. But I work in the field of inclusion, disability पिछले 12 साल से. I have a support group that I run for families जिनके बच्चों को disability है, intellectual. I'm an inclusion fellow, which means I've done a fellowship from a very prestigious organization which works in the field of inclusion. और कहानियों के जरिए ही inclusion का message I try to spread.
I tell stories to children who have disability, और उनको सब कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ only through stories. So yeah, that is what I do. Thank you. Could have gone Thank on you. listening to you, Shivani. It's very empowering and very encouraging, and also so important to know how important it is to have an empathetic society in general. In general, I mean, compassion और empathy तो compassion. है, कम हो रही है यार. कोरोना के वक्त थोड़ा सा लगा था कि it had gone up a little bit, but इंसान है ना, सब कुछ भूल जाते हैं. कोरोना किसी को टाइम याद नहीं है ना, सब इंसान जो होता है वो ऐसा ही होता है. उस टाइम everybody wants to bring in change in their own life and everything, but अब सब भूल गए हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. So Thank you yeah. so much, Shivani. Thank you, Thank you. thank you. So let's give both of them a huge round of applause. So now we can start with the concert. Shivani ji and Ishita ji, we are going to keep ourselves muted throughout your concert. So whenever one finishes, the other one will take over. So we'll just clap and we'll not unmute ourselves. So over to you. I think Ishita will start. Okay, ji, thank you so much. Thank you All so the much. best. All the best to both Thank of you. you. So specifically, मैं as the regular listeners would know, मैं -1 track पे नहीं गाती हूँ. I prefer just singing with my voice, and I love if all of you join in. So Rajesh ji के instructions are not to unmute, but please unmute and clap if you want to, snap if you want to, click if you want to, sing if you want to. है ना? तभी तो हम लोग passion वाले हैं. Actually, Ishita, it doesn't go in this zone. तो I वो know. conflict हो जाएगा voice का, I know, तो I'm so आपकी आवाज sorry. नहीं आएगी हमारे पास. नहीं, so Rajesh ji is the मजा नहीं आएगा फिर उसके अंदर. Rajesh ji is the final These are the constraints. background में please just give me moments. Yeah. Will so that you guys be. will enjoy. Definitely. तो ये I'll request everyone, especially अपना राकेश जी, थोड़ा सा डांस वांस करना है आपने. आज दिखा दो अपना डांसिंग स्टेप्स. तो उषा जी तो है ही है हमारी. हाँ. So हाँ. So I'm going to start with. So today I thought let me do some love cabarets and fun songs. And I'll start off, and I'm very bad with lyrics, so I know you're going to see my phone all the time. So thank you so much. It's so sweet. I'm so Purnima ji is excited. Thank you. So we'll start with this Geeta Dutt number, जाने क्या तूने कही. ठीक है. So now this is a dedication to all the Madmas love people. Please feel a lot of love and a lot of joy. Forget your troubles. Jhagda karein to forget that. You can go back and hug them if you feel like it, if they deserve it. And otherwise, just enjoy yourself and be merry. So I'll sing जाने क्या तूने कही. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या तूने कही. सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई. जाग उठे ख्वाब कई, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या. नैन झुक झुक के उठे, पाँव रुक रुक के उठे. नैन झुक झुक के उठे, पाँव रुक रुक के उठे. आ गई चाल नई, बात कुछ बन ही गई. जाने क्या तूने कही.
जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या. So I've left one stanza, वरना तो बहुत लंबा होता. So that. Thank you. Thank you, Ishita. Thanks a Thank you. lot. Okay. Actually, to be honest, मैंने आज के सेशन का थीम नहीं देखा था, बट सॉरी अबाउट दैट. बट लेकिन आज भजन नहीं है, बट आई गॉट अ सॉन्ग ओनली दैट आई सिंग. और इट्स अबाउट हाउ हम लोग का मन कितना चंचल होता है, एंड इधर से उधर भागता है, बड़े सपने देखता है, बहुत कुछ आशाएं रखता है. सो बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने है, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया क्यों भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोकों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी करवटों से निंदिया क्यों भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे से, बावरे झरोकों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना. Thank you. Thank you very much. All yours, Ishita. So wonderful. हम ऐसे ही आगे पीछे करते रहेंगे, मैं उनसे कुछ और नहीं सुन सकते हैं. नहीं, I think change is good. Acha, perfect. So then, next cabaret song. I don't know why am I doing a cabaret special today, but मुझे लगा, it's fun. Normally I'm very serious. So then, okay. नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी,
कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हो थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। पी ले इसे, इसमें नशा, जिसने पिया वो हम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, जू 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 जू, जू 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 जू, जू 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 जू। आंसू तेरा एक मोती है बना, सोनी डगर में जैसे सोनी ये चाहो सुहानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। हो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। Oh baby, I couldn't end without that. Very nice, very nice. Thank you. Wonderful. Okay, so we'll take a break Actually. from songs now. और कल actually tomorrow is World Laughter Day. तो मैंने सोचा एक हंसने और हंसाने वाली कहानी सुनाते हैं. And I hope you'll enjoy. एक पुरानी folk tale है from the south of India. और मतलब हंसने और हंसाने वाली कहानी में एक मियाँ और एक बीवी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो उन्हीं के बारे में कहानी सुनाऊंगी. तो एक गांव में एक कपल रहते थे, स्वामी और लक्ष्मी. अब लक्ष्मी का काम था वही जो हम सबका काम होता है, रसोई में खाना बनाना, घर को साफ करना, चाहे कितनी भी नौकरियां कर लो बट ये तो करना ही पड़ता है. तो ये काम लक्ष्मी का भी था. अब स्वामी के लिए दिन था संडे का, और स्वामी को संडे के दिन उसकी फेवरेट डिश चाहिए थी, जो थी चावल और चिकन करी. और उसके लिए उसकी बीवी लक्ष्मी के अलावा दुनिया में कोई भी इतनी बढ़िया चिकन करी नहीं बनाता था. तो सुबह सुबह उठ के स्वामी ने आवाज लगाई, लक्ष्मी आज बना रही हो ना मेरा वही फेवरेट चावल और चिकन करी? अरे क्या करते हो, तुमको मालूम है ना रविवार का दिन है, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, अब बनाने भी दोगे या बुलाते रहोगे मुझे? और लक्ष्मी ने अपना काम शुरू किया. वही चॉपिंग, चिकन करी, मसाला, सीटी बजी. वहां स्वामी इंतजार में बैठा और चूहे दौड़ रहे थे जैसे पेट के अंदर. फटाफट आवाज लगाई लक्ष्मी ने, स्वामी आ जाओ खाना तैयार है. तो स्वामी जी आए और बैठ के खाना अपना आज तो लक्ष्मी तुमने बाय गॉड कमाल कर दिया, आज जैसी चिकन करी तो शायद मैंने कभी खाई नहीं. बड़ी खुश लक्ष्मी को शर्म आ रही थी क्योंकि इतना तारीफ कर रहे थे उनके पति. हाथ धोने गए स्वामी जी, खाना वाना खत्म करके हाथ धोने गए, सडनली उनके जैसे खराश सी उठी जरा थोड़ी. मुंह में से क्या निकला? चिकन का फेदर. आप सोचिए, एक पंख
लक्ष्मी, ये देखो आज खाने में से क्या निकला। अयो रामा रामा रामा, स्वामी तुम मर जाएगा। अरे प्रभु मेरे स्वामी को बचाओ। अरे चुप करो। हाँ ऐसे रोने लगी तुम बिना लक्ष्मी बिना बात पे। एक कोई छोटा सा फेदर ही तो निकला मेरे मुंह से, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मर रहा मैं अभी इतनी जल्दी। अब लेकिन बात सुनो लक्ष्मी, बताना मत किसी को ये, है ना? जाके नहीं तो तुम बोलने लग जाओगी उधर उधर, बस अपने तक रखना, चुप। हाँ स्वामी जरूर। पर अंदर तो लक्ष्मी इतनी दुखी थी, पति परमेश्वर के लिए खाना बनाया और मर जाते तो क्या होता, अंदर ही अंदर उसको दुख मतलब खा रहा था। स्वामी जी तो लाइक ऑल डियर हस्बैंड्स खाना खा के पेट पूजा करके संडे दोपहर को सोने चले गए। लेकिन लक्ष्मी जी बेचारी जो थी उनके तो अंदर अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो सकता था। तो वो बहुत दुखी थी, बाहर जाके बैठ गई, थोड़ी रो रही थी, आंखों में से आंसू, है ना? ऐसे सब चल रहा था। साथ में सहेली रहती थी, सहेली को नाम देते हैं, लेट्स से पूजा था उनका नाम। पूजा आई, कहती अरे लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें, कैसे क्या रोई जा रही हो? मत पूछो मत पूछो, आज तुम्हें क्या नहीं मैं बता नहीं सकती तुम्हें। पूजा अरे क्यों नहीं बता सकती? एक तो तुम मुझे अपनी सहेली कहती हो, ऊपर से मुझे बता नहीं रही हो, रोए जा रही हो। अभी तो कितनी कंसर्न हो ना तुम्हारे लिए। बताओ बताओ क्या हुआ? तो पता है आज स्वामी खाना खा रहे थे और चिकन करी के बाद उनके अंदर से पता क्या निकला? क्या निकला? 5 पंख निकले चिकन के, 5। सच में 5? बच गए लक्ष्मी, है ना तुम्हारे हस्बैंड। लेकिन सुनो पूजा, पता किसी को मत बताना, ठीक है? बड़ी मना किया है मुझे, किसी को बताना मत। आप पड़ोसन को बताओगे ऐसी खबर, वो अपने पेट में रखेगी कभी? भाग के गई। अब मिस्टर पूजा जो थे वो सो रहे थे। अरे सुनो, उठो उठो, क्या उठो उठो, क्या हुआ है? पता है? अरे क्या हुआ? संडे को भी सोने नहीं देती हो चैन से, क्या हो गया बताओ क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है वो साथ में रहते हैं ना स्वामी और लक्ष्मी। पता है आज स्वामी चिकन करी और राइस खा रहे थे, और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आप जगा ही दिया है तो बताओ क्या हुआ? उनके पेट में से पता है क्या निकला? क्या निकला? चिकन लेग निकला। चिकन का लेग। ओ चिकन लेग, सच में? हाँ हाँ, मैंने खुद लक्ष्मी के मुंह से अपने आप सुना है। ओ हो, ये तो बड़ा बड़ा बुरा हुआ, बेचारा बड़े तकलीफ में होगा। चलो अब तुमने उठा ही दिया तो जरा बेड़ी वेड़ी पिया हूं, जरा जाके पार्क में सैर करके आता हूं। अब मिस्टर पूजा जी जो थे वो सैर करने निकले, वहां मिस्टर राव भी सैर कर रहे थे। देखते ही बुलाया, मिस्टर राव इधर आइए इधर आइए। अरे क्या कर रहे हैं आज? आप दोपहर को सैर कर रहे हैं? दोपहर को तो आप सोते हैं मैंने सुना है। अरे नहीं, क्या बताऊं, आपको मालूम नहीं क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? मिस्टर राव ने पूछा। अरे वो ही मिस्टर स्वामी नहीं है, वो रहते हैं उस नंबर में, वो 2nd फ्लोर पे। हाँ हाँ, क्या कल ही तो मिले थे मुझे, क्या हुआ? अरे चिकन करी खा रहे थे सुबह, आपको पता नहीं, खांसी हुई, इतनी जबरदस्त खांसी हुई। फिर क्या हुआ? मिस्टर राव ने पूछा। अरे खांसी करते करते आधा चिकन निकला उनके पेट के अंदर से। आधा चिकन? मिस्टर राव ने कहा हाँ, विश्वास नहीं, कैसे विश्वास करूं, कोई चिकन निकलता है पेट में से? अरे मेरी वाइफ पूजा ने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से? फिर तो सच में हुआ होगा, ये तो बड़ा बुरा हुआ वैसे। अच्छा मैं अब जरा जाता हूँ, काफी देर से सैर कर रहा हूँ। क्यों जाते हैं मिस्टर राव? क्योंकि उनके पेट में कहां से पचेगी बात, उनको भी बताना है किसी को जाके। फटाफट घर पहुंचे। मिसेस राव, आज मैं तुम्हें खबर देने के लिए आया हूं, अभी तक तो तुम देती थी मुझे खबर। आइए, मैं सोसाइटी की खबर मैं देता हूँ, आइए आइए। आपको मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? स्वामी, वही लक्ष्मी और स्वामी जो उस घर में रहते हैं, रोज सैर करते हैं हाथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का, वही। हाँ हाँ, उनके घर से आवाजें भी आती हैं, सोसाइटी की बातें होती हैं, आपको मालूम ही होगा ऐसे। तो कहते हैं उनके खांसी करते करते चिकन करी खाई थी, पता है पेट में से क्या निकला? क्या निकला? अरे पूरा चिकन निकला पेट के अंदर से। पूरा चिकन? अभी फोन करती हूँ मैं उनको जरा, बड़ी बेचारी दुखी होगी, मेरी दोस्त है ना, मेरी सहेली है, हम रोज मिलते हैं।
नहीं नहीं नहीं, उनकी बात मत करना। नहीं, पर किसी ने देखा? हाँ, वही मिस्टर राव कहते, वही पूजा, उनके हस्बैंड, दोनों ने अपनी आंखों से देखा। ओह, अब आपको पता है अफवाह तो फैलती है जो कैसे फैलती है ना, आग के जैसे फैलती है। शाम तक पूरी सोसाइटी में बात फैल चुकी थी कि सुबह मिस्टर स्वामी के साथ क्या हुआ। अब मिस्टर स्वामी को क्या पता, उन्होंने तो अपनी बीवी को कह दिया था, देखो लक्ष्मी, किसी से मत कहना, तुम्हारी आदत है। लक्ष्मी जी ने भी बोला था स्वामी जी को, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं कहूंगी। लेकिन शाम को जब स्वामी जी उठे, अपना खिड़की का दरवाजा खोला, तो बाहर एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। अरे, हमारे घर के बाहर इतनी लंबी लाइन! लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है हमारे घर के बाहर? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कौन है ये लोग, क्यों खड़े हैं? एक्चुअली स्वामी जी, वो पता है क्या हुआ, वो ना देखने आए हैं। हाँ, क्या देखने आए हैं? वो देखने आए हैं कि शाम को आपके पेट में से क्या निकलेगा। लक्ष्मी, तुम्हारे पेट में बात पची नहीं ना, सबको जाके बता दिया। जल्दी से कपड़े पैक करो। और फटाफट स्वामी और लक्ष्मी ने अपने कपड़े पैक किए। अब यहां रहना बड़ा मुश्किल है, कुछ दिनों तक घर से बाहर जाना पड़ेगा, जब तक एक नई 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 अफवाह नहीं फैलेगी और पुरानी अफवाह को लोग भूल जाएंगे। So that was our story for today. Thank you very much. I will just be back in a second, Shivani ji. 2 seconds. No worries, 2 seconds, no Rajesh worries. ji. No worries. तो ये कहानी मैं बच्चों को भी सुनाती हूँ, बट आज बड़ों को भी सुनाई है। तो कहानियां तो ऐसी होती हैं कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको पसंद आती है। तो दैट इज, और बहुत सारी ऐसी हमारी फोक टेल्स हैं। तेनाली रमन है, और मुल्ला नसरुद्दीन है, बहुत सारी कहानियां। सो या यस यस। That was so Okay. interesting. मजा आ गया शिवानी जी. Thank you, You kept us Shita. glued. Thank you. Thank you. Over to you. Thank you. So, अब इस गाने में तो बिना संगत के बड़ी दिक्कत होगी, राजेश जी ने एम्बार्गो लगाया हुआ है। तो अब I'm going to try how to sing this without all of you. But I thought since this is my last song, so I thought I'll end with the Madam Mast Kalandar. हाँ, कोशिश. Okay. हो 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 लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालड़ सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालड़ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालड़ सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आइया बला झूले लालण, पंजवा में बारण आइया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालड़ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालड़ सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी
क्या बात, बहुत अच्छे. Thank you. Lovely. Thank I you so think a much. huge round of applause for both of them. Everyone, you can unmute yourself. सबने म्यूट कर रखा है भाई. Please unmute yourself. आप ही की हिदायत थी. Thank you. बहुत 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 बढ़िया, मजा आ गया मतलब. Thank Uh, you. So happy. इसी तरह दिस लास्ट वन वाज बुले शाज शायरी ना, ये जो लास्ट का दमादम जी मस्त जी करम जी था. जी. ओ गॉड, मजा आ गया मतलब. It यू has been स्टार्ट. composed by so many people, but somehow एक ट्यून बरकरार रही है. Surprisingly, so many people across the globe, such big artists have sung and given voice to this, लेकिन ट्यून मोस्टली बराबर सेम रही है. वो रूना लैला वाला ना. रूना लैला वाली. यस यस यस, अमेजिंग. 80s के अंदर बहुत सुनने को मिलता था उनको दूरदर्शन पे. जी जी. क्वाइट अमेजिंग, मतलब तीनों सॉन्ग्स आपके जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग. Thank you. ईच वन ऑफ देम वाज Always अमेजिंग. such a pleasure. Thank you. और शिवानी जी, आपका जो गाना था, मजा आ गया, बहुत अच्छा गाना था. Thank you. ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड द स्टोरी वाज क्वाइट हिलेरियस. मतलब एज इशिता सेड ना, वी वर ऑल ग्लूड कि अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. Thank you. Thank you. टू गुड शिवानी जी. एंड योर स्टाइल ऑफ नरेशन, मतलब पूरा वी कुड विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग. पूरा मोहल्ला हमारे को, ईच के एंड एवरी कैरेक्टर वी कुड विजुअलाइज. पूरा मोहल्ला समझ में आ रहा था हमारे को. Thank you. Thank you so much. so nice. Thank you. तो आई रिक्वेस्ट पूर्णिमा जी. Thank you. Well, I would start off with saying pleasure was all ours. बहुत अच्छा लगा. It was so entertaining. और गानों की चॉइस, और आप कह रही हैं कैबरे, पर it's a mix of vintage and cabaret, so it's a beautiful song, and that speaks volumes about life and so much more. और बाकी वो तो है कि रेखा जी keeps doing the rounds. वो गाना भी सुनता है, लेकिन रेखा जी घूमती हैं तो बस वो तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है. But and yet the story was so enjoyable. लगा फॉर अ मोमेंट कि हम भी कभी कभी स्वामी और मैडम हो जाते हैं. ये अच्छा लगा, वो फ्लेवर जो था बड़ा अच्छा था, मजा आया सुन के. So thank you so much for all the entertainment. We just loved it. Thank you. I'm sure everybody loved it. ये ना, आपको एक चीज बोलूंगी. आप कुछ लोग शायद जानते होंगे कि ये महाभारत से शुरू हुआ था, ये कि जो औरतें हैं वो अपने पेट में सीक्रेट नहीं रख सकती. आपको इसके पीछे का डज एनीबडी नो द रीजन? तो जब महाभारत में कर्ण मारे गए, तो युधिष्ठिर जो थे, उनको मालूम पड़ा कि वो मेरे सबसे बड़े भाई थे, और उन्होंने कहा कि अगर पता होता मुझे, अगर कुंती मेरी माँ मुझे पहले ही बता देती कि मेरे बड़े ब्रदर थे, तो ये शायद महाभारत की लड़ाई भी ना होती. तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी माँ कुंती को ही कर्स किया था कि आज के बाद कोई भी औरत अपने पेट में कोई सीक्रेट नहीं रख सकेगी. ये कहानी है महाभारत से. So, yes. नीतू जी. Well, it's a wonderful experience. I don't know if I will be able to add value here. Ishita ji, your songs, Dr. Mongia ने म्यूट कराया हुआ था. Otherwise, मुझे तो लग रहा था बस कब ये कहें बस शू, and I'll start singing with you. राजेश जी, बॉम्बे में लाइव हम लोग का पैशन वाला कराते नहीं है, या तो आप लाइव बॉम्बे में करिए तो हम साथ में गा पाएंगे. बिल्कुल, आप बुलाइए, आ जाते, हम सब लोग आ जाते. Done. Let's work this out. Done. Yeah, बिल्कुल. that's really great. बहुत अच्छा लगा. And शिवानी जी, your story especially, मतलब सुनते रहो, ऐसा हो रहा था. एंड मैं बताऊं, मैं साउथ में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया. आई वॉज देयर, सो मुझे पता है मिस्टर राव और लक्ष्मी जी और पूजा जी, मैं बिल्कुल विजुअलाइज कर रही थी कि वो कैसे होते हैं और कैसे होंगे. सो दे वर ऑल इन फ्रंट ऑफ मी. रियली वंडरफुल. आई एम एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर. थैंक यू. राकेश जी. परफॉर्मेंस से पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा हमारे दोनों स्पेशल गेस्ट के बारे में, कि आप दोनों अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रही हैं, मतलब जो बहुत काबिले तारीफ है. मतलब मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ आप दोनों को सुनकर, तो मुझे लगता है कि हम कैसी मुंडेन लाइफ जी रहे हैं, हम लाइफ में कुछ चैलेंजिंग कर ही नहीं रहे हैं. आप दोनों को सुनकर इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि आप लाइफ में इतना कुछ कर रही हैं. रियली हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. ये तो पहली बात So होगी. kind of you, राकेश जी. Very encouraging. और दूसरी बात, इशिता जी,
आप इतने वर्सेटाइल सिंगर हैं, मतलब आपने गीता दत्त भी सुना दिया, आपने कैबरा का वो सॉन्ग भी सुना दिया रेखा जी का, फिर आपने जो भजन गाया है तीसरा लाल मेरी, ये जो तीसरा भजन था ये आइसिंग ऑन द केक था। और मतलब कोई भी म्यूजिक का प्रोग्राम हो, चाहे वो इंडियन आइडल या कोई भी म्यूजिक का प्रोग्राम हो या कोई भजन संध्या हो, जब तक ये भजन नहीं गाया जाता वो कंप्लीट नहीं होता है। सही बात है। और इसको मतलब नुसरत फतेह अली साहब से लेके हर सिंगर ने गाया है, लेकिन जैसा आपने कहा ट्यून मेंटेन की है, मजा आ गया उसको सुनकर, तो मजा आ गया। शिवाली जी, आपका पहला गाना जो आप एक ही गाना गाया, आपने बहुत अच्छा गाया और आपकी स्टोरी तो लाजवाब थी। और जो जिस तरह से नरेशन किया है आपने, वो इतना लाइवली था, जैसे लग रहा था कि कोई एक्ट आप इनएक्ट कर रही हैं। बहुत शानदार था। वी रियली एंजॉयड सर। Thank you, both of you. Thank you very much. Thank you so much, Rai. Thank you. उनीसा, सर जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था ना दोनों मैम के लिए, शिवानी मैम के लिए, इशिता मैम के लिए, तो मैं तो उसी को सुन के बहुत ही खुश थी, क्योंकि आपने जैसे बताया ना दोनों जर्नलिस्ट थे, और जैसे इशिता मैम ने बोला कि उनको मतलब बोलने का बहुत शौक है, सो आई कुड रिलेट, मतलब उनके जो जो एम्बिशन है ना, इट्स लाइक सिमिलरली टू माइंड, लाइक टू स्पीक अ लॉट, एक्सटेम्पोर वगैरह लिखना, सो आई कुड जस्ट रिलेट विद बोथ ऑफ हर। सो मतलब जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया और जो उनकी परफॉर्मेंस थी, आई वाज लाइक माय गॉड, मतलब जर्नलिस्ट होने के बावजूद जैसा उन्होंने गाया, उनकी स्टोरी टेलिंग, और ऋषिता मैम के बैक टू बैक वो गाने विदाउट एनी म्यूजिक, आई वाज लाइक टोटली स्टन्ड, स्पीचलेस। ऋषिता मैम वो तीनों गाने मतलब बहुत बेहद खूबसूरत, देयर वर नो इफ्स एंड बट, इट वाज फ्लॉलेस टू द कोर। और शिवानी मैम, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, आपका नरेशन बहुत ही प्यारा था, और वो गाना भी बहुत, इट वाज लाइक टोटली टच्ड, it was heart touching. I loved both the performance, the singing as well as the storytelling. It was on point. So sweet, Unisa. Thank you so much, and make sure that you make lots of money out of this passion. I'm still trying to do that, but you make sure that you make lots of money out of Okay, okay. I will connect with you, Ishita ma'am, for sure. प्लीज। राजेश जी, बड़ा मजा आता है जब इंडिविजुअली सबसे तारीफ कराते ना, इट्स लाइक हमारे साल भर की तारीफ, एंड मोरल इज बूस्टेड, इट इज सो कूल। थैंक यू। उषा जी। It was such a wonderful performance and a wonderful evening today. I feel lots of masti today after listening to your songs and Shivani ji's story also. And first about Ishita, Jaane Kya, starting with Jaane Kya and Kaise Paheli, and the last one, oh my God, I was controlling a lot. I felt like to dance, but I was just controlling. It is very nice. When we do this live, please don't control. Okay. And then about Shivani ji's story, it was touching to all the five senses, and such a picturesque explanation, and the style of narration, wonderful way of storytelling. Kudos to you for that. And your song was also so soulfully sung. Lovely. Both the performances. Thank you. आशुतोष। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट था आप दोनों का, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि आपने ज्वाइन किया हम लोगों को, और बहुत अच्छी इवनिंग थी। आप सबसे पहले तो सॉन्ग्स, इशिता मैम और शिवानी मैम, आप दोनों के जो पहले सॉन्ग थे, बहुत मीठी आवाज में आपने बहुत सुंदर गाए, बहुत ब्यूटीफुल लगा, और सारे सॉन्ग्स के लिए मैं कहूँगा फ्लॉलेस एंड परफेक्ट, मतलब। और इशिता मैम, आपने जो बाकी के दो सॉन्ग्स जो गाए, उसमें जो गूंज थी वो बिल्कुल बहुत समय तक रह जाएगी हम सबके कानों में। और बहुत बहुत अच्छा था। मैंने जितने भी लाल मेरी के वर्जन सुने, उन सभी में मैंने जो लाइव मैंने सुने, उनमें से बहुत आगे रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा। एंड अबाउट द स्टोरी टेलिंग, शिवानी मैम, दैट्स सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल वाइब्स आ गई थी स्वामीनाथन मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स, उनकी बहुत बहुत अच्छा लगा वो, बहुत। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तन्वी। शिवानी जी, तन्वी जो है हमारी स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ। और पंजाबी के गानों के अंदर से निकाल के कॉमेडी लाती है। अरे वाह। तन्वी।
सो मैम जब आप लाइक बिकॉज मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो जब मैं स्टोरी सुनती हूँ तो मेरा पूरा एस्पेक्ट उसमें चला जाता है. सो व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दैट स्टोरी, तो एक ही लाइन आई कि हम एक इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं दैट हैव यू हर्ड दैट, डू यू नो दैट रूमर. So, but, and I heard उसका बहुत अच्छा comeback कि you can never know a rumor, you can only know the truth. You can hear a rumor, but you can never know a rumor because it's already a rumor. तो अफवाह को आप कैसे जान सकते हैं? तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. और ये लिटरल जिस तरह से वो प्लॉटिंग होती गई और वो स्टोरी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है कि पंख से पूरा चिकन, बहुत इंटरेस्टिंग था. बिकॉज मुझे ह्यूमरस पीसेस सीखने का थोड़ा सीखना है. सो दिस वाज अ रियली गुड लाइक एग्जांपल. एंड थैंक्स फॉर द सॉन्ग्स. लास्ट सॉन्ग मेरा फेवरेट था बुल्ले शाह का जो आपने गाया. दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. इशिता, हमारे रहेजा जी ने आज, यू केम लेट, तो रहेजा जी ने स्टार्ट जो हमारा सेशन का किया था बड़ा जबरदस्त किया था. इन्होंने आज गाना सुनाया फुल मस्ती वाला, किशोर कुमार का. कौन सा था रहेजा जी गाना, अमिताभ बच्चन वाला? रहेजा जी आवाज खुली हुई है आपकी आवाज, बोलिए आप. हाँ आ गई. आवाज आ रही है? देखा ना ये? माइक आपने पीछे कर दिया लगता आपने, इसलिए आवाज नहीं आ रही आप. हाँ यस यस यस. देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, क्यों कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान. क्या बात है, क्या बात है. So much fun. ये मैंने वक्त के पहले ज्वाइन करने के बाद भी मिस कर दिया. नहीं, वक्त से पहले ज्वाइन नहीं किया ना. वी स्टार्टेड एट 6:30. Oh, I'm so sorry. I thought it was 7. नहीं 7 फॉर यू ना. I'm so sorry. I'm so sorry. नहीं इट्स ओके, इट्स ओके. तो रहेजा जी जो है हमारे, यू नो, ही इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. हमने 3 साल पहले जो स्टार्ट किया था, तो रहेजा जी, राकेश जी, उषा मैम, हम सब लोग ने स्टार्ट किया था और 1-2 लोग और हैं. तो 5-6 ऑफ अस आर स्टिल देयर. एंड इतना पैशन है रहेजा जी के अंदर. आई थिंक कहीं भी जाते हैं ना, मतलब वेरेवर ही गोज, काफी ट्रैवलिंग का इनको शौक है, तो जहां भी जाते हैं वहां से भी ज्वाइन करते हैं. अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आ गई इनके ऊपर. एक पोता है इनका, 8-10 महीने का पोता है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. बट ही इज वेरी 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 पैशनेट. तो रहेजा जी कैसा लगा दोनों का गाना आपको, गाना और स्टोरी? बहुत ही बढ़िया कॉन्सर्ट था दोनों का. इशिता का जो तीनों के तीनों सॉन्ग थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे कॉन्सर्ट के अंदर ही चल रहे हो. ये पहला गाना जाने क्या तूने कही, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग, लाइफ से भी रिलेटेड था ये. और लास्ट में इन्होंने कहा दमादम मस्त कलंदर. तो लॉन्ग बैक कभी ये गाना सुना करते थे और मस्ती में झूमा करते थे इस गाने को सुन के. मतलब जहां भी ये चलता था तो सब लोग डांस किया करते थे. और हो सकता है कि आज ये ऐसा अगर कंसर्ट में कहीं चल रहा था तो सब लोग डांस ही कर रहे होते इसके. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत अच्छा था. और शिवानी जी की स्टोरी कैसी लगी आपको? शिवानी मैडम की स्टोरी तो लाजवाब थी. भी सोच रहे थे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. तो देखते देखते जो पता चला कि ये है कि जिस तरीके से बात जो है कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, गॉड नोज की क्या. बहुत बहुत अच्छे लगे. और आपका गाना भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था. तो आई थिंक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम. मेरे ख्याल से खोल गया, अनम्यूट करके करिए प्लीज. Thank you very much. Thank you.